کل جو نیب کی طرف سے اس ٹھگ پہ ہاتھ ڈالا گیا تو میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو الزامات سامنے آئے ان الزامات میں ایک ایول گٹھ جوڑ بھی اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن میں نیب نے بے نقاب کیا۔ وہ ایول گٹھ جوڑ جو تھا ایک ایسی خاتون سے متعلقہ تھا جس کو موصوف جو ہیں اپنے اکاؤنٹ سے مستفید فرماتے رہے اور ان کے اکاؤنٹ سے مال پانی ان کے اکاؤنٹس میں آتا رہا، اور وہ سابقہ حکومت میں سرکاری خرچے پہ جس طرح جھولے لیتی رہی جہازوں میں، اور ابھی تک وہ سوالیہ نشان ہے کہ اس خاتون کا خواجہ صاحب کی ذات سے کیا رشتہ اور تعلق تھا جو اکاؤنٹ کے ذریعے بے نقاب ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین کے حوالے سے انہوں نے کسی کو ٹریکٹر کہا، کسی کو ٹرالی کہا، بدترین بد کلامی اور بد زبانی میں انہوں نے ہمیشہ ٹرافیاں جیتی۔ آج وہ پاکستان بھر کی خواتین ان سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ جو ذرائع آمدن، اثاثے، بینک اکاؤنٹس آپ کے نیب سامنے لے کے آئی ہے، وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ کون سے ٹریکٹر اور ٹرالی میں لاد کے پاکستان منتقل ہوئے ہیں، کیونکہ دبئی سے منی لانڈرنگ کر کے ان پیسوں کو آپ نے وائٹ کرنے کے لیے جن خواتین کا سہارا لیا ان کو آپ ٹریکٹر کہیں گے یا ٹرالی کہیں گے؟ دوسری بات، ابھی یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں میں راج کماری، جو جعلی راج کماری ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ فی الفور سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ آپ کا کرپشن کا ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے۔ اور جو بلاول بھٹو زرداری نے آپ کی نظریے کو پار پار کر دیا ہے، اور جس پی ڈی ایم کے 9 جماعتوں کے ٹولے کو آپ لے کے چلی تھی، اور وہ 2 اس میں چونکہ ویسے ہی بھاگ گئے تھے تو 11 میں سے 9 پہلے رہ گئے تھے، اور وہ ان کے جو بیانیے کے ساتھ جڑا کل حال بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے کیا ہے، افسوس کہ آپ کی گڑی خدا بخش کی یاترا بھی وہ کام نہ کر سکی۔ آپ کا سجدہ ریز ہونا، قبروں پہ ٹکرے مارنا بھی کسی کام نہیں آیا، اور الٹیمیٹلی وہ بیانیہ 9-2-11 ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک دفعہ پھر عمران خان کے بغض، حسد اور عناد میں جو آج بھی تعریفیہ کلمات ادا کیے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اپنے بھرپور باؤنسر سے آپ کی یہ 11 میں سے 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے اب راج کماری جعلی اور مولانا فضل الرحمان دونوں کریز پہ اکیلے کھڑے ہیں بیٹ پکڑ کے، اور 9 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس تگ و دو میں ہیں کہ کسی طرح یہ میچ بچایا لے پی ڈی ایم کے بیانیے کا، جو کسی صورت بھی بچتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور عمران خان آئین اور قانون کے باؤنسر سے
पीडीएम की पूरी टीम को घर भेजेंगे और ये इसी तरह इनका बयानिया रेजा रेजा हुआ है। जिस तरह दरख्तों के खज़ां में पत्ते बिखरते हैं, इसी तरह पीडीएम का जो बयानिया बिखरा है। आज मरियम बीबी फरमा रही थी कि इंतकामी कार्रवाइयों में पीएमएलएन की क़यादत को नैब के ज़रिए गिरफ्तार करके नवाज शरीफ से इनका साथ ख़त्म करने की हुकूमती कोशिश है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे आपके पहले से मुतासरीन हैं और जो करप्शन के समंदर में गोते खाने वाले अफराद थे, वो एक एक करके कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। तो इसमें हुकूमत का नहीं, उस अपने टोले का जिन्होंने हमेशा अवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए अवाम के दर्द को बयान करना और अवाम के मसाइल में इजाफा करना वतीरा बनाया हुआ था। आज वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के इदारे फ़ाल, बाख्तियार और कानून के ताबे हैं। किसी शख्स, किसी ख़ानदान और किसी फ़र्द के ताबे नहीं हैं। तो राजकुमारी साहबा, आपके ये जितने भी रहबर बन के राहज़न थे, उनका अंजाम का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि आपने अवाम की आंखों में धूल झोंकी, मिर्चें डाली, मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाने का हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन अफसोस के कानून को बेवकूफ़ बनाने में आप कामयाब ना हो सके और अल्टीमेटली कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। जो आज की आपकी चीखो पुकार और कनीज़ों की आओ बका है, वो इस बात की निशानदेही करती है कि इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम का जो लाजवाल रिश्ता है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इमरान खान अपने अवाम की बेहतरी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के हर अदारे के जो अवाम के साथ जुड़े वेलफेयर प्रोग्राम हैं उनको आगे बढ़ाते रहेंगे और पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल इंशाअल्लाह तय करेगा। जो आज का इंसाफ वेलफेयर विंग का इनिशिएटिव है, उसको सामने रखते हुए मैं अपने इंसाफ वेलफेयर विंग के इन साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान ने जो तहैया किया है कि वो इन गिद्धों को, इन सियासी गिद्धों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी को और अमलदारी को यकीनी बनाना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे अहम विजन और मिशन है और उसके रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इंसाफ के सताए पाकिस्तान के मजलूम अवाम जो है वो आज इमरान खान की क़यादत में इंसाफ के बोलबाले को जिस पजीराई से देख रहे हैं और दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा था उसकी ताबीर और तकमील जो है वो इंशाअल्लाह इंसाफ वेलफेयर विंग के हाथों होगी और हम आपकी उन काविशों को जो पाकिस्तान को आप निचली सतह पे वो पिसे हुए अवाम और तबकात जिनका आप सहारा बनते हैं, जिनके लिए उम्मीद की किरण बनते हैं और जिन्हें आप अपनी मदद आपके तहत दुखों का मुदावा करने के लिए सहारा बनते हैं,
उन तमाम इंसाफ वेलफेयर विंग के साथियों को खराज तहसीन पेश करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अवाम खोर टोला है, अवाम खोर टोले ने जो अवाम का हशर नशर किया था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हुकूमत में हो या इंसाफ वेलफेयर विंग की ज़ेरे सरपरस्ती गैर हुकूमती इक़दामात के ज़रिए उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने में मसरूफ़ अमल है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में वो तमाम समाजी इनिशिएटिव जिसके अंदर सोशल प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो जहाँ मुस्तहिक नदार बच्चों के लिए तालीम और क्वालिटी एजुकेशन हो, जहाँ छोटा किसान और काश्तकार के लिए वेलफेयर प्रोग्राम हो और हमारी बेटियां, बहनें और ख़वातीन उनको मुआशी तौर पे बाख्तियार बनाने के मंसूबे हों। गर्ज के कामयाब नौजवान के ज़रिए सूबे के पढ़े लिखे नौजवानों को हर तरह से बाख्तियार बनाने के लिए वो रोज़गार के मौके हों या कारोबार के मौके हों, आसान इक़्तिसाद पे कर्ज़ों की फराहमी और फिर वो हमारे ऐसे अफराद जिनके सरों के नीचे छत नहीं है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में ये सूबे के अंदर हम उनके लिए साहिबान भी बनने जा रहे हैं। उनके लिए बेघर अफराद के लिए घरों की फराहमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर का हम हिस्सा था, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब में हम उसकी अमलदारी को यकीनी बनाने जा रहे हैं। और वो हर वो पिसा हुआ तबका जो इस वक्त मुस्तहिक है, नादार है, गरीब है, बेबस है, लाचार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो और उसके एसोसिएटेड हुकूमती और पार्टी के जो विंग हैं उनकी ताकत से उन तमाम तबकात को हम बाख्तियार, एम्पावर और हर तरह की सरपरस्ती जो है वो देने के लिए पुरज़म है। और पंजाब हुकूमत के तमाम प्रोग्राम वो इन तमाम मंसूबों के साथ जुड़े हकीकी वो रिफ्लेक्शंस हैं, आईनादार हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मैनिफेस्टो को रिफ्लेक्ट करता है बल्कि हम सब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन का जो दुखी इंसानियत के साथ जुड़ा दर्द और एहसास का रिश्ता है उसकी भी अक्कासी करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसफ हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, सब ने अपने अपने किए का हिसाब देना है। और जो स्याहकारियाँ और स्याह अमल थे, 1.5 साल से नैब में उनकी लुका छुपी चल रही थी। नैब और अदालतें इस पूरे एहतसाब के अमल को मॉनिटर कर रहे हैं। हमें सिर्फ अवाम की अदालत में ये पैगाम देना है कि जिस शख्स ने भी पाकिस्तान के गरीब का माल पानी खाया, टैक्स के पैसे पर डकार मारे और अवाम खोरी की, हवा खोरी समझ के जो अवाम खोरी करते रहे, हुकूमत जो है उन करप्ट नासर की
निशानदेही का अमल जारी रखेगी। बाकी नैब उस हवाले से क्या लाए अमल बनाती है और अदालतें उनके लिए क्या तरीक़ाकार तय करती हैं, ये उन अदारों का काम है। मौलाना फजलुर रहमान को भी नैब ने तलब किया हुआ है, उनको भी जाके नैब में अपनी सफाई देनी है और ये फैसला नैब ने करना है कि उन्होंने कब उनको गिरफ्तार करना है और कब, अगर वो सफाई देने में कामयाब हुए तो यकीनन नैब इतने भारी भरकम बोझ को नैब में बर्दाश्त नहीं करेगी। माशाल्लाह से 2002 की असेंबली में उस वक्त के मशहूर ज़माना टॉक शोज़ निकाल लीजिएगा, और मैंने पहले दिन जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था और इन ठगनी ख़वातीनों की रूनुमाई मेरे हाथ ही हुई थी। और आज 20 साल बाद अगर नैब अकाउंट्स के ज़रिए उन ठगनियों को बेनकाब कर रहा है तो बड़ी देर की मेहरमा आते आते 20 साल बाद आपको पता चला कि इनका क्या किरदार था। हमें चंद माह में पता चल गया था कि इनका एजेंडा और टारगेट क्या है। पार्लियामेंट में जो कैट वॉक करने और ख्वाजा आसफ जैसे बेशुमार और हमारे मुतासरीन को जिन पे हमें रहम आता है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये अब अदालतों को करने दें, क्योंकि अकाउंट्स में वो ईवल गठजोड़ साबित हो गया है। ईवल गठजोड़ अकाउंट्स ने साबित की है। ये वो जो माले मुफ्त दिले बरहम, ये जो माले मुफ्त दिले बरहम की दर्दनाक कहानी की एक उसका बाब ये भी है। इस मुल्क के अंदर जो शाही ख़ानदान के बेनिफिशरी रहे और उन्होंने जाते जाते कौमी ख़जाने को जो जहर आलूद टीके लगाए, इस अदारे के अंदर भी उन्होंने एक ऐसी नागन बैठा दी कि जिसने जिस तरह उस अदारे को जहर आलूदा किया, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और जानबूझ के वो बैठाया गया कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनली आप किसी शख्स को अपना टेन्योर पूरा किए बगैर हटाते हैं तो फिर अदालतें उस हवाले से रिलीफ देती हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि अदालतें जो हैं वो किसी ऐसे इनिशिएटिव को रद्द करें। हम चाहते थे कि खुद ही अपने गिरेबान में झांक के तो शर्मिंदगी महसूस करके उस पाकीज़ा अदारे से इस किस्म के बदबूदार किरदार अलहदा हों, लेकिन वो नहीं हुए। तो अब इंशाल्लाह इस गठजोड़ के बाद उन्हें अलहदा होना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आज हम इंसाफ वेलफेयर फोरम में बैठे हैं। इंसाफ को हर हाल में मुकद्दम रखते हुए इंसाफ का बोलबाला करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का सबसे पहला बयानिया ये है कि नो वन इज़ अबव द लॉ। जो हमारी सफ़ों में हो या किसी और सफ़ में हो, कानून जो है उसकी हुक्मरानी और अमलदारी वो यकीनी बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है।
دیکھیں یہ ماشاءاللہ نشاندہیاں تو جو آپ کے ہاتھ میں وہ میکرو لینس ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو قانون کا لینس ہے وہ کرتا ہے. جو اپنی کریز سے باہر جا کے کھیلتا ہے، قانون کی کریز سے باہر جا کے کھیلتا ہے، وہ ٹھگ کے لاتا ہے. تو وہ کوئی بھی ہوگا، قانون اس کے لیے حرکت میں آئے گا، وہ کسی بھی صف میں ہو. تو کس جماعت میں کون کریز سے باہر جا رہا ہے، میڈیا سے بہتر کوئی اور نشاندہی نہیں کر سکتا. یہ سخت رد عمل خواجہ صاحب کے گھر کے باہر آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ 50 لاکھ کی آبادی سیالکوٹ کی، تو 50 آدمی میں وہاں موجود نہیں تھے. تو وہ سخت رد عمل، اگر اس کو سخت کہتے ہیں تو اس طرح کے سخت رد عمل لاہور میں بھی وہ دینے نکلی تھی. تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سختی جو ہے وہ چند جو ہے وہ گلیوں تک محدود رہی. تو پورا پاکستان جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کا ہے، تو کسی ایک خاندان کا غلام نہیں ہے. لاسٹ بیٹے تاکہ پروگرام جو دیکھیں جو نیٹ کے ٹھگنی ایک ہی ٹھگنی ہے جو نیب نے کل سے بار بار اپنے اکاؤنٹس میں مطلب وہ اب اس کی ذات پہ میں کیا کہوں ایک خاتون ہوتے ہوئے، لیکن کیش مالا کہتے ہیں ان کو، کیش مالا. وہ آپ سمجھ جائیں کہ جس کی جیب میں کیش ہے ان کے گلے کی مالا ہے. اور کچھ سننا ہاں دیکھیں میرا پیر جو ہے نا وہ عمران خان ہے، اس کے قدموں میں آ جائیں تو میں اس کو پیر بہن بنا لوں گی. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. مریم نواز کا کرپشن کا ٹائٹینک ڈوبنے والا ہے. بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کا ایجنڈا پاش کر دیا. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے منی لانڈرنگ کے لیے خواتین کے اکاؤنٹ کا سہارا لیا ہے. عمران خان کے باؤنسر نے 11 میں سے 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا.